Thank you very much, everyone, for joining in today for the Outreach and Extension Division of Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi's program, which is marking Teachers' Day today. And I suppose there are a lot of us from the university here as teachers, and there are many Delhi government school teachers who has joined us. I think I would just like to begin by both thanking and congratulating every one of us for being in this very important profession and vocation of teaching. What we have thought of doing today, as you know, some of you and all of you probably know, is that we wanted to hear Delhi government school teachers. उनसे ही सुनेंगे उनके बातें, उनसे ही सुनेंगे उनके narratives and narratives of their experiences of practicing really innovative activities in schools in Delhi. This program, while it's being anchored through the Outreach and Extension Division of the university, currently I am Rukmini Sen, and I am the director of the division. This division has been in existence in this university for about a year. It's actually 1 year. We had launched it on the 30th of September in 2021. And today, we are doing literally a year before we had started. And in this little time, what the Outreach and Extension Division has attempted to do are the following 2 or 3 things, which I would like to share with all of you, also for broader dissemination purposes. The division has adopted 3 villages or clusters in the West Delhi area, and these are Kirtinagar, Jawahar Camp, and Chuna Bhatti. And what we are trying to do is that we are trying to work with the women, the children, the elderly, the adolescents of these areas on various issues relating to health, relating to education, relating to skill enhancement. That's one work that we are trying to do. On that initiative, actually, we had done a March 8th International Women's Day program at the Jawahar Camp, this year, where the Honorable Vice Chancellor addressed and talked to, literally conversed with the adolescent girls and women there. Other than that, this division has run a faculty development program. This faculty development program was on the pandemic experiences and reflections. We had people from various professions coming and talking to us about the ways in which they handled and negotiated the pandemic and what were the lessons learned. I would like to again extend my thanks to Dr. Naresh Kumar Raj, who had joined us as a resource person from the Delhi government school, perspective towards the pandemic. And he had shared with us in great detail about the kind of wonderful work that school teachers, government school teachers were doing during the pandemic. And we are also imagining to start off a program which is called the Academics on Wheels program from the Outreach Division. And we intend to, the entire purpose of the Outreach Division is actually to reach the community. And by community, we mean not just, we mean the people, and we also mean institutions which work closely with the community. And I would think that it is in that context that having this discussion today with one of the premier institutions which work with people in this city of Delhi, which is government schools, is so important. And today being 5th of September, as we all know, Sarvapalli Radhakrishnan's birthday, as we celebrate, we are extremely lucky and fortunate that we have school teachers, government school teachers with us. We are also extremely happy and delighted that we have Dr. Sunita Singh, who is the Dean School of Education Studies
one of the very early schools that was established in this university, who will be anchoring this discussion. Dr. Sunita Singh is, she completed her PhD from the Department of Curriculum and Instruction, Language and Literacy at the University of Illinois at Urbana-Champaign in the US. Prior to joining Ambedkar University, Delhi, she had worked at Lee Moyne College, Syracuse in New York. He's also been very instrumental in shaping and contributing towards a center that we have, which is called the Early Childhood Education and Development Center, a center which has actually worked very closely with Delhi government schools, if I am correct. And you know, as someone who heads this school, she has also mentored a large number of projects which have been funded by national and international agencies related to research and evaluation, capacity building, advocacy in areas related to early childhood care, education, and language and literacy. The School of Education Studies runs an MA program in Education Studies, runs an MA program in Early Childhood Care and Education, and also runs a PhD program in Education Studies, and is soon to actually launch another program on English Language Studies. So I couldn't think of a better anchor today to actually talk with school teachers. It is her forte and her area. Over to you, Dr. Sunita Singh. Thank you very much, Professor Rukmini, and thanks to all the esteemed guests. Before I even begin to say anything, I am very happy many of our students have actually joined. I was a little skeptical because, 4 o'clock, many of them had classes till 4 p.m. So, and they are still joining. So I'm extremely thrilled. So I do want to, thank both Professor Rukmini and also the Outreach and Extension Division for giving me this opportunity for moderating this session. And, even though being in the higher education, we know we have much to learn about education, about the school system from our teachers, and especially being located in Delhi, from the teachers in Delhi. And I really look forward to listening to our 3 outstanding teachers from the schools of the government of NCT of Delhi. Today is Teachers' Day, and the theme of this webinar is on innovative practices in Delhi government schools, narrative from teachers. And we know very well, and we are very conscious, but this is also to remind ourselves that any innovations in the school can only be implemented with the involvement and commitment of the teachers. And, in the recent decades, and especially in the recent years, we are, constantly seeing how the education system is changing, the students, the teachers, the administration. And in our most recent memory, the COVID-19 pandemic completely changed the face of education, and it has been the teachers who have held fort throughout this time. I hope that this webinar gives us some insights into what teachers do, especially in our Delhi schools, which is so close to us. And me being, and our colleagues, we being from the School of Education Studies, we would really like to take this take this dialogue beyond this webinar, and engagement with narratives from teachers is also a space for teachers to dialogue, and it is also for us in the academia to listen and reflect on classroom practices that work for children, for us to think about that, what is it that we need to do more? What are the ways, what are the areas, what are the spaces that need more research? What kind of action research do we need to think about? And especially when it comes to the schools in the government in Delhi, we have heard a lot,
However, most of what we hear is from sources of, the news and the other channels of media. It is rare that we get to hear the voices of the teachers actually. And so we have 3 teachers today, and without any delay, we will just get started. So the way the session has been organized, what we will do is that it would be good if each of the teachers, if each of you could take about 15 minutes, that will give us about approximately 10 minutes or so for questions from the audience. Many, as I mentioned, I can see many of our students, and I'm sure they will have a lot of questions for you. So that would be helpful. So I will just invite our teachers in the order in which it is listed in the program. So first, I would like to invite Dr. Naresh Kumar Raj, who is a master trainer. He is also a mentor teacher and a lecturer in geography from the Department of Education, Government of NCT of Delhi. And he will speak on a topic which is extremely relevant today, is on entrepreneurship mindset curriculum. So, Dr. Kumar, please. Thank you, Madam Dr. Sunita. First of all of you, Happy Teachers Day. और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो डिवीजन है, आउटरीच एंड एक्सटेंशन डिवीजन, सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है हम सभी को जोड़ने का। और दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स को आपने जोड़ा, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। कोलैबोरेशन बना रहता है। तो जैसे कि 15 मिनट मेरे को दिए गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा। बहुत बड़ा इसको 15 मिनट में समेटना बड़ा मुश्किल है। EMC को, EMC मतलब एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। एक्चुअली इसकी शुरुआत 2019 में होती है, जब ये देखा गया कि बच्चे जो है, कुछ बच्चों के अंदर स्किल्स हैं और वो निकल के आनी चाहिए। और बच्चे जो हैं आगे चलकर भविष्य में बहुत सारी समस्याओं से जूझने के लिए तैयार रहें और भविष्य में वो लड़ पाए हर एक परिस्थिति से, बल्कि पॉजिटिवली खड़े हो पाए। तो 2019 में इसका पायलटिंग किया गया, रिसर्च बेस। 24 स्कूल सेलेक्टेड फॉर पायलटिंग। इसमें 50 लोगों की एक टीम तैयार की गई, SCRT और मेंटोर टीचर्स के साथ मिलकर। हर एक डिस्ट्रिक्ट से 3-3 स्कूलों का चुनाव किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और वो अपना SCRT के अंदर मिला करते थे कि इसको कैसे लेके जाएं, बच्चों के पास इसको कैसे लेके जाएं। तो इसका पायलटिंग के बाद इसकी बुक्स पे काम हुआ। 9th और 10th की एक यूनिट बनाई गई, फिर 11th एंड 12th की एक बनाई गई। उस समय ये 9th to ऑनवर्ड चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, और 9th से स्टार्ट होता है। और इसमें एक पीरियड हम डेली का रखते हैं क्लासरूम के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें 6 कंपोनेंट हैं जिस पर काम होता है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम पर, जिसके अंदर मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा। माइंडफुलनेस, थीमेटिक यूनिट, स्टूडेंट स्पेशल, LEI यानी कि लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन होता है, और इसमें बिजनेस ब्लास्टर है और करियर एक्सप्लोरेशन है। थोड़ा मैं इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। माइंडफुलनेस जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बच्चे को फोकस होना और सजग रहने के लिए प्रेरित करता है माइंडफुलनेस। ये डेली 3 से 5 मिनट की हमारी एक एक्टिविटी होती है पीरियड के अंदर, EMC के पीरियड के अंदर। स्टार्टिंग जब पीरियड का होता है तो EMC से होता है। फिर इसको ब्रीफ में हम करवाते हैं उस दिन तो 3 से 5 मिनट। इसमें एक एक्टिविटी होती है, लिसनिंग की भी होती है, ब्रीदिंग पर फोकस होना, लिसनिंग पर फोकस होना, आसपास की आवाजों को सुनना, बेली ब्रीदिंग है। इसके कई पार्ट्स हैं। और जब क्लास खत्म होती है तो 1 या 2 मिनट का साइलेंट एक्टिविटी होती है, जिसमें सिंथेसाइज करता है बच्चा कि आज मैंने क्या सीखा। माइंडफुलनेस की एक एक्टिविटी जो कि महीने के पहले सोमवार को वो पूरा एक पीरियड चलती है, उसके अंदर हम रिफ्लेक्शन लेते हैं। और रिफ्लेक्शन लेने के लिए बच्चे का हम कोशिश करते हैं कि 40 की क्लास साइज है, 40 स्टूडेंट, तो हम थोड़ा सभी का रिफ्लेक्शन ले। जैसे कि लिसनिंग की एक्टिविटी है कि आपने क्या सुना, क्या आवाजें सुनाई दी जब आप इसको माइंडफुल कर रहे थे, अपने आप को लिसनिंग कर रहे थे। तो बच्चा उसमें रिफ्लेक्शन देता है कि मेरे को पंखे की आवाज आई, या किसी के पैरों की आवाज आई, या किसी के ट्रैफिक के बाहर से आवाज आ रही थी। तो इस तरह से बच्चा उसको करता है, फिर बाद में फिर फोकस होना शुरू हो जाता है। बेसिकली इसका उद्देश्य यह है माइंडफुल होने का कि
जो क्लास एक स्टार्ट होती है उसमें आपाधापी दुनिया भर की चीजें जो होती हैं, उसमें बच्चा फोकस होना सीख जाए, सजग होना सीख जाए। इसको हम आंख बंद करके भी कराते हैं, और किसी को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आंख खोल भी सकता है। तो ये साइंटिफिकली है, और ये हमारा माइंडफुल की जो एक्टिविटी है क्लास 1st to 8th भी हो रहा है। अभी उसके बारे में अविनाश जी बताएंगे डिटेल में। और 9th to 12th हमारी EMC की क्लासेस में हो रहा है। इसके बाद एक हमारा जो एक कंपोनेंट है, इट्स अ रेगुलर एक्टिविटी, थीमेटिक यूनिट। इसमें 9 to ऑनवर्ड्स अलग अलग किताबें हैं वर्तमान समय में। प्रेजेंटली 9th की अलग किताब है, 10th की अलग है, 11th की अलग है, 12th की अलग है। थीमेटिक यूनिट्स में हम एक स्टोरी लेते हैं सक्सेस उद्यमी की, बिजनेसमैन की। उसमें वो 10 से 12 पीरियड तक सजेस्टिव है, चल सकता है वो पूरा यूनिट। और उसके अंदर कई तरह की एक्टिविटी होती हैं, बच्चे उसको करते हैं क्लासरूम में एक्टिविटी को, जैसे कि टावर बनाने वाली एक्टिविटी हो गई, किसी दिन जहाज बनाने वाली एक्टिविटी, कोलैबोरेशन। इससे कई चीजें बच्चों में आती है, मिलकर काम करने की उसमें क्षमता का डेवलपमेंट होता है, कोलैबोरेशन आता है, लीडरशिप क्वालिटी आती है। फिर इसमें एक सक्सेस स्टोरी होती है, जैसे अर्बन क्लैप की होगी, फ्लिपकार्ट की होगी, MDH मसाले वाले की रखी थी। इसी प्रकार से सक्सेस उनकी उद्यमियों की, बिजनेसमैन की जो स्टोरीज हैं उन पे चर्चा होती है। और फिर उस कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जो बच्चे करते हैं, क्रिटिकल थिंकर बनते हैं कि उनको कैसे मुसीबतें आई, फिर कैसे उन्होंने उस बिजनेस को स्टैब्लिश करा। तो रेगुलर ही चलती है। 9th की अलग स्टोरी है, 10th की अलग है, 11th की अलग है, 12th की अलग है। इस तरह से सेकंड कंपोनेंट था, ठीक है, जो डेली होता है हमारी क्लास में। और एक जो बहुत अच्छा कंपोनेंट है, अब सारे ही 6 के 6 बहुत अच्छे हैं, एक है स्टूडेंट स्पेशल, यानी इसको स्टूडेंट स्पेशल को हम स्पेशल सैटरडे भी बोलते हैं। इसके अंदर ये हर एक सैटरडे को एक्टिविटी होती है। स्टार्टिंग के जो हम किसी जो जैसे जुलाई में सेशन स्टार्ट हुआ, तो एक दो पीरियड में तो जरूर टीचर्स को फैसिलिटेट करते हैं कि इसको कैसे लेके जाना है, लेकिन पूरे बाद में बच्चे अपने आप करते हैं, और क्लास जो सब्जेक्ट टीचर है EMC का वो बैठे रह जाते हैं, बस अपना फैसिलिटेट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बच्चे अपने से करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें होता क्या है। स्टूडेंट स्पेशल एक्टिविटी में एक एंकर होता है, एक इसमें जोक मास्टर होता है, एक इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू लेगा, ठीक है, एक टाइम कीपर होता है, एक ऑब्जर्वर होते हैं, ऑब्जर्वर्स की टीम होती है, 1+3 की टीम होती है। अब उसमें जस्ट इस एक्टिविटी को हम एक और नाम देते हैं, जस्ट ए मिनट, यानी कि जैम एक्टिविटी, JAM, जस्ट ए मिनट। अब इसमें कई स्किल्स निकल के आती हैं, पर्चियां पहले बना ली जाती हैं, जैसे कि एंकर सबका आज का जैसे मान लो सैटरडे है, तो जिस सैटरडे को वो करवा रहे हैं एंकर, स्टूडेंट ही होंगे सब, तो वो सबका परिचय कराएंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे। और उसके बाद जोक मास्टर आएंगे, जोक मास्टर 1 मिनट का जोक सुना के वो चले जाएंगे। फिर इंटरव्यू की जो एक्टिविटी है वो इंटरव्यू की होगी, और किसी दिन इसमें ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन उसमें किरदार इस तरह से ही होंगे सब, और वो बदल दिए जाएंगे, अगले हफ्ते फिर बदल दिए जाते हैं, यानी कि सबको मौका मिलता है बोलने के लिए, कुछ ना कुछ परफॉर्म करने का रिपीट मौका मिलता है सभी को। तो इसमें इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होना, कॉन्फिडेंस आना, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से यूज करना है, जो स्टेज फियर होता है कई स्टूडेंट्स के अंदर, वो खत्म हो जाना, ये सारी चीजों पर इसमें हम फोकस होते हैं स्टूडेंट स्पेशल एक्टिविटी में। तो इसमें फिर एक जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है वो इसमें टाइम कीपर की है। टाइम कीपर के पास हम 3 कार्ड बनवाते हैं, एक येलो का एक ये ग्रीन कार्ड बनता है, एक येलो कार्ड बनता है, एक रेड कार्ड बनता है। और सभी को कहा जाता है कि आपको जो टास्क दिया गया वो 1 मिनट में पूरा करना है। सपोज कि आपको आपकी पर्ची निकली किसी टॉपिक पे बोलने के लिए, जल्दी डिबेट, यानी कि तुरंत से आपको कोई टॉपिक मिल गया और उस पर बोलना है, नॉट एक्सपेक्टेड था वो, तो बच्चा उस पर बोलेगा। और इसमें जो साइलेंटली इसमें टोकते हम बिल्कुल भी नहीं है, बच्चा अगर ज्यादा टाइम भी ले रहा है, लेकिन हम उसको कार्ड दिखाता है, टाइम कीपर उसको कार्ड दिखाएंगे, जैसे कि उसका 30 सेकंड हो जाता है तो उसको ग्रीन दिखाएंगे, यानी कंटिन्यू होती है। अब 45 सेकंड होंगे, येलो दिखाना होता है, रेड को दिखाएंगे हम जब 60 सेकंड हो जाता है, टाइम इज कंप्लीटेड। बट उसको रोकने के लिए हम नहीं कहते हैं, अगर किसी ने 1 मिनट 10 सेकंड ले लिया, 1 मिनट 15 सेकंड ले लिया, कोई 2 मिनट भी बोल जाता है तो हम उसे रोकते नहीं है। बाद में जब एक्टिविटी खत्म होती है उस समय मास्टर ऑब्जर्वर भी आते हैं और टाइम कीपर भी बताते हैं कि आप किस किस कैंडिडेट ने कितना टाइम लिया। उसमें एक टाइम मैनेजमेंट सीखता है बच्चा, और बाद में सब सिंथेसाइज भी, और जो बच्चे सुन रहे होते हैं उनकी पेयर लर्निंग होती है कि अगर मैं होता
तो मैं इस समय क्या बोलता इस टॉपिक पे, या मैंने क्या इसने जो मेरे साथी ने कुछ छोड़ दिया है तो मैं उसमें क्या ऐड ऑन कर सकता था। ये चीजें स्किल्स वो धीरे धीरे डेवलप करता है बच्चा अंदर। जो ऑब्जर्वर्स हैं उसमें मास्टर ऑब्जर्वर्स और 2 लोग और आते हैं, तो वो ये बताते हैं, उनको पॉजिटिव इसमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना होता है। उसमें कंटेंट पे ज्यादा ध्यान ना देकर हम उसको बताते हैं कि ऑब्जर्वर ये देखेगा कि उसका आई कांटेक्ट कैसा था, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी थी, बोलने का तरीका कैसा था, क्या सभी की तरफ ऑडियंस की तरफ ध्यान था कि नहीं था, और एक वो इम्प्रूविंग कोई चीज कह सकते हैं सजेस्टिव, जिससे कि आप आने वाले टाइम में अगर आपको मौका मिले तो इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो जैम एक्टिविटी ये कॉन्टिन्यूसली हर सैटरडे को होती है हमारी, और यूट्यूब चैनल्स हैं SCRT का भी, इसमें हमारा EMC का एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम्स का, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का भी हमारे चैनल्स हैं, फेसबुक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, ट्विटर्स हैंडल्स भी हैं। इन पर ये सारी एक्टिविटी आप देख सकते हैं। एक इसमें लाइव एंटरप्रेन्योरशिप इंटरेक्शन कराते हैं जिसको LEI बोलते हैं हम। ये एक्टिविटी महीने में एक बार होती है। इसमें ये कंपोनेंट किस तरह से काम करता है इसमें बताना चाहूंगा। ये कंपोनेंट काम करता है कि इसमें आसपास के जो सक्सेस एंटरप्रेन्योर हैं, जो टीचर को लगता है कि मैं इसको जानता हूं और इसने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल करके एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश किया है, ये बच्चों को कुछ सुझाव दे सकते हैं, तो हम उनको इन्वाइट करते हैं अपने स्कूल में, और हर एक सब्जेक्ट टीचर अपने अपनी क्लास में इन्वाइट करते हैं। तो वो 40 मिनट के पीरियड में अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। किसी दिन हम उनको 50 मिनट का पीरियड भी कर देते हैं। अपनी बातें रखते हैं कि मैंने कैसे बिजनेस शुरू करा था, मेरे को क्या चैलेंजेस फेस हुए, और बच्चे उनसे कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। ये जो लाइव इंटरेक्शंस है ये हर एक क्लास में अलग होता है, सेपरेटली ग्रुप में नहीं होता है, क्लास वाइज सब जगह होगा। 9th में जितने सेक्शन है उनमें होगा हर महीने, 10th में जितने सेक्शन है उनमें होगा, 11th में भी होगा, 12th में भी होगा। तो ये पूरा हर महीने का चलता है। इसमें हर महीने जो है इनवाइट करते हैं हम उनको, और वो आते हैं, बच्चे उनसे बात करते हैं। ठीक है। एक कैरियर एक्सप्लोरेशन है, एक और कंपोनेंट है कैरियर एक्सप्लोरेशन। इसमें बच्चा जो है ये स्कूल से बाहर की एक्टिविटी है। इसमें एक्चुअली 4 कंपोनेंट स्कूल के अंदर चलते हैं और 2 स्कूल के बाहर चलते हैं। तो जो कैरियर एक्सप्लोरेशन है स्कूल के बाहर चलता है। इसमें जो स्टूडेंट है वो महीने में 2 लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, एक बिजनेस पर्सन के और एक किसी जॉब पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं। उसमें हमारे DOE की गाइडलाइंस हैं कि वो किस तरह बच्चे जो यूनिफॉर्म में ही जाएंगे, आई कार्ड पहन के जाएंगे, और डार्क आवर्स में नहीं जाएंगे, स्कूल टाइम में नहीं जाएंगे। इवनिंग वाला बच्चा मॉर्निंग में जाएगा, मॉर्निंग वाला इवनिंग में जाएगा। इसके संबंधित NOC भी वो जमा करानी होती है, पेरेंट्स को सूचना देनी होती है। आसपास के एरिया में ही जाएंगे। सिंपल क्वेश्चंस पुट करते हैं, जैसे पहला इंटरव्यू इस तरह से हो सकता है कि आप का क्या नाम है, किस व्यवसाय में हो, ये व्यवसाय आपने क्यों चुना, क्या चैलेंजेस आए। फिर अगले महीने वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले हो सकते हैं कि आपने इतने व्यवसाय, क्या एक ही व्यवसाय में आपको सक्सेस मिल गई थी, या और आपने दूसरा व्यवसाय चुना तो उसमें क्या चैलेंजेस आए। इस तरह से चलता है। जब बच्चे इंटरव्यू करके आ जाते हैं तो हर महीने के 2 दिन हमने फिक्स कर रखे हैं इस EMC के पीरियड में, लास्ट सोमवार, महीने का लास्ट मंडे एंड ट्यूसडे, जब बच्चे अपना अनुभव शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम गए थे इंटरव्यू लेने और हमारा कैसा अनुभव रहा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलता है, कंपोनेंट पूरा इस तरह से चलेगा। एक हमारा जिसने बड़ी प्रसिद्धि कमाई, बिजनेस ब्लास्टर, ये भी आउट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम है, बिजनेस ब्लास्टर। और ये भी EMC का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें ये हमारा 11th और 12th में चलता है ओनली। इसमें हम DOE जो है उसको हर एक बच्चे को 2000 पर स्टूडेंट को हम सीड मनी अलाउड करते हैं, और ये टीम वर्क के रूप में काम करता है। सपोज एक क्लास के अंदर अगर 50 बच्चा है तो वो 2 से लेकर 5 या 7 बच्चों की टीम बना सकते हैं। सबसे पहले वो आइडिया पे काम करते हैं, 5 टीम मेंबर्स कि 10, मान लो 10 आइडिया आए 5 लोगों के, तो उनमें से कौन फिजिबल है, कौन आगे तक जाएगा। फिर वो टीम डिसाइड करती है कि हम इन 10 आइडिया में से एक आइडिया चूज करेंगे जो आगे ज्यादा बड़ा आइडिया बनेगा और इस पर हम काम कर सकते हैं, ये आगे जाके कंपटीशन में निकलेगा। तो इस तरह से आइडिया आता है। प्रेजेंटेशन होती है क्लास लेवल पर, फिर स्कूल लेवल पर होती है। स्कूल लेवल पर 3 एंट्रीज, जो बेस्ट एंट्रीज हैं, वो जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजी जाती हैं। फिर इसके बाद एक
एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं जो HOS लेवल के होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। एक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो मेंटर टीचर होते हैं। फिजिकल एजुकेशन के कुछ टीचर होते हैं, कल्चर के कुछ टीचर्स होते हैं, और DD मैडम, हमारे डिप्टी डायरेक्टर मैडम या सर होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के, जो इस टीम में मेंबर होते हैं। वो फिर फाइनल चुनाव करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर 150 स्कूल हैं तो उनमें से कौन सी एंट्रीज बेस्ट हैं जो दिल्ली लेवल पर कंपटीशंस में जाएगी। फिर ये वो अपना काम अपना चालू रखते हैं, अपना प्रोडक्शन बनाते रहते हैं बच्चे। इस पूरी टीम में हम देखें तो इस तरह काम करते हैं। मान लो 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे में एक इसमें ग्रुप लीडर होता है, एक इसमें सर्वेयर होता है जो सर्वे करता है, मार्केट सर्वे करता है, एक फाइनेंस का रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। बाकी टीम मेंबर किसके साथ कैसे कोलैबोरेशन बनाना, इस तरह से अलग अलग उनको जॉब दी जाएगी। बेसिक आइडिया हम ये देखते हैं इसमें बिजनेस ब्लास्टर के अंदर कि आइडिया इस तरह से होना चाहिए जो इनोवेटिव हो, जो आगे चलकर फिजिबल हो, बड़ा काम करे। वो मतलब इस सेल परचेज पे ना डिपेंड हो, बल्कि वो अपना कुछ इनोवेटिव हो, और आगे चलकर अगर वो 5 लोग हैं तो आगे 50 बल्कि 500 बल्कि 5000 लोगों तक को जोड़ें उस आइडिया के अंदर। यानी जॉब मांगने वाले से अलावा वो जॉब देने वाले बने लोगों को। इस तरह से ये आइडिया काम करता है। सेंट्रल लेवल पर जब ये टीम सिलेक्ट होती हैं तो उनके लिए एक पैनल बनता है। वो बड़ा सीक्रेट मामला होता है, कौन किस पैनल में या डिस्ट्रिक्ट में जाएगा किसी को नहीं पता होता। बिल्कुल इसको हम ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करता है DOE। और उसके अंदर एक बिजनेसमैन होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, कोई फाइनेंसर होते हैं, मेंटर टीचर होते हैं, HOS होते हैं। और ये 2 दिन एक्टिविटी चलती है साल में, जिसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। हम लास्ट ईयर की बात करें तो 126 हमारी सिलेक्ट हुई थी इसके अंदर टीम्स, जिनको चांस मिला है, जिनसे हमारा साइन है कि हम उनको डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं बच्चों को कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो वो डायरेक्ट उनको विदाउट एनी एंट्रेंस उनको एडमिशन देने की प्रोविजन है। तो ये 126 टीम सिलेक्ट हुई थी लास्ट ईयर। इस प्रकार से ये 6 कंपोनेंट काम करते हैं और ये पूरे साल चलते हैं। अब इसमें मेन मुख्य बात, क्योंकि टाइम होता जा रहा है, मैं बताऊंगा कि इसमें जो लर्निंग होती है बच्चे की, वो ये होती है कि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, और बच्चा जो है टीम वर्क में काम करना सीख जाता है। बच्चा डे बाय डे के चैलेंजेस फेस करना सीख जाता है, और उसको बहुत सारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे लोगों से मिलने का जो एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, वो उसको कहीं ना कहीं 9th में, 10th में, 11th में और 12th में, जब बच्चा 12th पास आउट होगा तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करके जाएगा। और हमारी क्लासेस इस प्रकार का उदाहरण है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते थे, इन एक्टिविटीज के माध्यम से वो बोलते हैं, अपने से करके दिखाते हैं। और इसका आप हमारे YouTube चैनल्स वगैरह पे देख सकते हैं, और हमारे सारे पेजेस पे आप देख सकते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में रखने की कोशिश की है। ये पूरी ट्रेनिंग जो है मैं 2 दिन में प्रोवाइड करवाता हूँ। मेरे साथी भी जो है वो 2 दिन में इसकी AMC की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। हम सारी एक्टिविटीज इसको कराते हैं। HOS लेवल की हम ट्रेनिंग करा चुके हैं। एक EMC कोऑर्डिनेटर स्कूल का होता है, उनकी 2 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में भी TGT और PGT जो 9th टू ऑनवर्ड पढ़ा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में PGTs रह गए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये बड़े पार्ट पे चल रहा है। इसकी ट्रेनिंग का पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि इसकी पेडागोजी इज टोटली डिफरेंट। इसमें हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते कि अगर समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट कंटेंट पे, अगले चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चे की। अगर इस हफ्ते जिसको चांस नहीं मिला है उसको अगले हफ्ते मिलेगा। फैसिलिटेटर ये ध्यान रखते हैं कि अगले हफ्ते उन बच्चों को हम चांस देंगे जिनको अभी इस हफ्ते चांस नहीं मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मेरे 15 मिनट हो चुके हैं, और जब क्वेश्चन आंसर आएंगे तो मैं देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। Dr. Naresh, thank you very much. And आपने टाइम पर रखा, thank you for that. But just listening to what you were saying, ये हमको इससे ये भी पता चलता है कि the depth of work that is involved, your level of engagement, and very importantly, even though students are engaging with the idea of entrepreneurship and business, it is not that cut and dry business जो हमारा एक वो sense of business है. So and that's very important for us as educators, especially when you mention that you are also focusing on skills of critical thinking, communication, overall development, and
most importantly, participation of all students. So, these are things which are extremely important. So we will get back to you. I'm sure there would be more questions from the students. Next, I would like to invite Ms. Manu Gulati. Ms. Gulati is working as a mentor teacher and a teacher of English language at the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi. As a mentor, she provides on-site academic and pedagogic support to teachers teaching in the Delhi government schools. With over 18 years of teaching experience, she has been promoting students' learning with innovative pedagogic practices. She has been conferred with the National Award to Teachers 2017 and with the National ICT Award to Teachers 2014 by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. Ms. Gulati is also has been a Fulbright scholar at the California State University in USA in 2018, and currently she is pursuing her PhD from Jamia. Maybe you could also tell us what you are doing for your PhD. So welcome and thank you for being with us. A very, very good evening to everyone. I have a very bad throat today, so I'm extremely sorry. My voice is so coarse today. Thank you so much, Professor Rukmani. Thank you so much, Dr. Sunita. Thanks to each one who has been instrumental, probably, when such sessions take place. There are so many people at the back end also who constantly support. So thanks to each one of you. And when I express this gratitude, why this comes straight from the heart? This comes straight from the heart because I've always felt that there's a dire need that, university students and school teachers should be connected to each other. So, and there has been watertight compartments that school system and the university system has been so deep down separated that, it's very difficult to understand what actually goes in the hearts and minds of university students. And our children go to university. So, it's altogether a different world. So we need to understand, we need to take the perspectives of students who are connected to us. I'm extremely glad. And that's why the gratitude comes straight from the heart. Thank you so much once again, Professor Rukmani and Dr. Sunita. Very good evening to all the students. What I'll be sharing today, Dr. Naresh ne ek baat kahi. I'll be bilingual if that's okay with everyone. Dr. Naresh ne ek baat kahi when he was talking about entrepreneurship mindset curriculum. कि हम अपने बच्चों में क्या विकसित कर रहे हैं. It's about the team spirit. It's about critical thinking. It's about togetherness. It's about कि आप किसी चीज में failure हुआ, and then you need to have that bounce back effect. That resilience should be there. What are we actually heading towards? What are we inching towards? That's very important. इन्हीं की बातों से connect करते हुए, I'll be talking about what joyful learning is. Why is there an imperative need to have innovations in the classroom? चाहे वो एक सरकारी स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो. Why is there a need to have joy and happiness in the classroom? हम क्यों सब happy रहे, हम क्यों joyful mood में रहे, and why learning needs to take that part ahead. Avinash ji would be talking about happiness, so I won't touch about that, but I'll be definitely talking about joyful learning. So it's very important to understand when we talk about the current educational landscape. Let's remember कि आज की the teaching learning today, it's more effective as a partnership. And it's not a teacher versus taught situation of, intimidation. वो धमकी, वो डर, वो भय, वो stick, that does not work today. So what works today is partnership. What works today is that power structure
is almost diluted. The power structure between the teacher and the taught. The teacher is always on the other side of the table, and the students are always on the other side of the table. So I think that needs to be diluted. और उसी के ही connection में ये element of joy, element of innovation. When we talk of joy, I think most of us here, we always wish to have classes that have an element of joy in them. हम school times में थे, हम university में हैं, एक joy का element चाहिए. And how do you incorporate that? So I would now bring some real life examples कि कैसे हम classroom में joy ला सकते हैं. And this is not something that would go standardized or universal. ऐसा नहीं है कि each size fits all, ऐसा नहीं है. But most of the students, like when we talk about students, उन्हें अच्छा लगता है when learning is integrated to, art, when learning is integrated to the real life scenario. I'll give a quick example. Abhi, like I'm an English language teacher, so जब हम classroom में बात करते हैं, so during the COVID times, I realized that since English is not their first language, it's not their vernacular, and they do not get to listen to English in their immediate surroundings. तो एक बहुत ज़्यादा they were like बहुत पीछे रह गए थे ये बच्चे in terms of English as a second language. इस subject में almost ऐसा था कि lexical retrieval नहीं था, words ही नहीं थे जो बच्चों को बोलने हैं, vocabulary almost disappear हो चुकी थी when they got back after the COVID times. So what we started doing, we started listening to English songs, and हमने Justin Bieber सुनना शुरू कर दिया, हमने Shakira songs सुनने शुरू कर दिए. It would sound very weird to some of us कि Shakira के गाने सुन रहे हैं, Justin Bieber सुन रहे हैं आप. If you are so it was just one small way, and I was so glad that children got hooked to it so well that they started, we started with leisure listening, and leisure listening gradually took the path of attentive listening. So ये बड़ा simple है समझना. हमने start तो किया कि मजे करेंगे क्लास में, ओके आज कुछ नहीं पढ़ेंगे बेटा, आज मजे करेंगे. But in a very covert manner, I was trying to give them that English wala input. I didn't tell them कि अब मैं questions पूछूंगी, अब ऐसे होगा. लेकिन if you get a chance and if you can explore the videos, I constantly post these videos on social media platforms so that we get an idea, because it's very important हम एक दूसरे से समझ पाएं. I learn from teachers who post on social media. So music and dance actually created and built that synergy in the classroom, जिससे उन्हें English language learning में मजा आने लगा. I'll give another example. जब भी कोई festival होता है तो हमारे बच्चे थोड़ा छुट्टी ज्यादा ले लेते हैं, because they actually help their parents. जैसे दिवाली हुई तो वो, या करवा चौथ हुआ, सो वो छुट्टी लेके और मार्केट्स में मेहंदी लगाना शुरू कर देंगे. वो एनवेलप्स बनाते हैं ताकि मार्केट में सेल कर सके, बिकॉज दे नीड टू सपोर्ट देयर पेरेंट्स फाइनेंशियली. सो लाइफ फॉर देम इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. तो हमने क्या करना शुरू किया? सो आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश, ब्लेंडिंग इट विद आर्ट एंड क्राफ्ट. सो हमने क्लासरूम टीचिंग में we started making old broken CDs से, used bangles से pen stand बनाना शुरू किया, waste paper से हमने envelopes बनाने शुरू किए. Now the question is, English कैसे आई इसमें? So each child who was making it, who was preparing it, group में था या individual था. So I told them that they have to narrate it to the whole class, the process of making what they made. And since they owned that product, ownership थी, मैंने बनाया है, ये मेरा बना हुआ envelope है. So that drive of sharing with others, that zeal of sharing with others, कि मैंने कुछ बनाया है, मैम ने टास्क दिया है इंग्लिश में शेयर करना. So they, it all gives, ये वाले moments हमें goosebumps देते हैं, ये realize कराते हैं
when you try to bring joy to the classroom, when you think of something that's not the everyday wala routine for children, उनके लिए भी थोड़ा सा एक challenge होता है, taking up new things, discussing with the peer mates that इसके लिए हम क्या word use करेंगे. So they often ask me, ma'am, इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ classroom में? The whole idea is that the element of fear should go away. चाहे आप kinesthetic way में करें, चाहे आप कुछ hand movement कराएं, चाहे आप उन्हें jumping exercise कराएं, आप body movement करा रहे हैं. So there are visual learners, there are auditory learners, कुछ music, कुछ dance, कुछ कुछ art and craft. ये तो art integrated हुआ. You give them books to read, and somebody might think कि book read करने में क्या joy है? But let them explore that world of the wonder of books, and उससे एक activity group task में हम लेते हैं. You ask the group to read a book. एक पेज किसी ने पढ़ा, उसने next को बताया, उसने next को बताया, and then together they come up, they bring up as a story, they extend it in a different manner. So what I'm trying to state, because I'll take care of the time. I think I have just 2 more minutes, so I'll take care of the time. What I'm trying to say is, when we talk about innovation, when we talk about joy, innovation zaruri, what is innovation? Anything that new you bring to the classroom that helps you delivering, or probably that togetherness ki aap co-work kar rahe ho, you're working together, partnership hai, and you are creating, you are building knowledge together. It's not कि कोई जग और मग नहीं चल रहा, tabula rasa नहीं है. They are not blank slates. So joy कैसे आएगा classroom में? When you think of certain new ideas, many times you fail as a teacher. Many times आपको लगता है ये तो बहुत aha moment हो जाएगा. But but they are not failures actually. So I feel that when you bring joy to the classroom, when you try something new, आप technology के साथ कुछ नया try करिए बच्चों के साथ. Content में तो they know a lot more than you, because they have Google, they have so many other platforms where they can explore. The whole idea of the importance of a teacher in the classroom is how well you are delivering it. Google will give students much more than you can give at one point of time. The whole idea is how. It's not about what they'll get anyways, what to mil hi jayega, but how that is being delivered, that is the point here. So bring joy to the classroom. There are moments, jab we just sit and talk, and that also brings joy. वो भी एक joyful experience है. Listening to their experiences, listening to their घर की stories, that is also what brings joy. So joy is not just music and dance in the classroom. Joy is giving them a feeling of being at home. That is what joy is. So let's reimagine, as students, as stakeholders, as you can be mentors to many students actually, like all the students who are connected to us. So let's reimagine, let's redefine what joy in a classroom means. Let's redefine what innovation means. So as I said, कि उनसे बातचीत करने में ही अगर उनको खुशी मिल रही है, that can also give them a moment of joy. So I would like to end with that. And so I think as students, as teachers, हम सभी connected हैं. If there'll be a possibility at the end of the session, I would request everybody to switch on their cameras. बहुत अच्छा लगता है, एक smile के साथ we'll be together. So that is also what brings joy, कि हम एक दूसरे को देख सके. So thank you so much once again, Professor Rukmani, Dr. Sunita, and to all the students here, to the mentors who are connected of Delhi government schools. Thank you so much, everyone who supported in the session. Thank you. Thank you.
Ms. Gulati, thank you again. And, I think you have in kind of, you talked about joy, but actually your entire talk was about breaking silos. Breaking silos between spaces of the university, spaces of the school, spaces of home and spaces of school for the children, especially those who come from marginalized background. And this is what we talk about the entire time in as students and faculty, in our research, in our teaching. This is what we engage with constantly. And there are, and I'm sure our students who are listening to your talk, they can even put those, technical vocabularies, like, so you've actually talked about what we read as inquiry-based learning. Inquiry-based learning, the different intelligence models, etc. So I can go on, but thank you very much. I thought, giving experiences, I thought was very, very helpful. And this is something we often think, how is it even possible? And so, you've shown us that it is actually possible for teachers to do. And, the last thing you've talked about, bringing popular culture, popular children's literature is another way to do that, but we can talk about it. So thank you again. And I would like to invite Mr. Avinash Kumar Jha, who is a member of Team Happiness in the Department of Education, Government of NCT Delhi, and he will speak on the happiness curriculum. नमस्कार सभी को और शुक्रिया ये मंच देने के लिए। क्या मैं एक छोटी सी पीपीटी यूज कर सकता हूँ? प्लीज अलाउ कर दें। एक सेकेंड। आपको को-होस्ट बना दिया है अविनाश जी, आप वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप शेयर कर सकेंगे। जी शुक्रिया। क्या आप स्क्रीन में कुछ लाइंस देख पा रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। तो कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। हम सबका अल्टीमेट गोल क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, चाहते क्या है हम उससे? क्या लगता है? तो यदि हम इसे थोड़ा सा टटोलेंगे, क्योंकि यहाँ वक्त कम है तो कुछ जवाब मैं खुद ही देता हूँ, मगर वो जवाब प्रस्ताव रूप में है, आप विचार करते रहिएगा। हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, और यहाँ तक कि चाहे कोई थप्पड़ भी मार रहा हो किसी को, चाहता तो खुशी पाना है, पर वो खुशी पाने का जरिया ठीक है कि नहीं? क्या वो हार्मोनियस लिविंग की तरफ लीड करेगा कि नहीं? क्या वो लंबे दौर तक उस खुशहाली को बनाए रखेगा कि नहीं? ये कुछ विचार के मुद्दे हैं। तो यदि हर व्यक्ति खुशी ही चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे बच्चे पीपीटी, हाँ, तो क्या हमारे बच्चे कुछ इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? क्या वो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं? क्या बुलिंग उनकी हो रही है या वो कर रहे हैं? इसी तरह से जो बाकी समस्याएं आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, वायलेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या ये समस्याएं बच्चों की जिंदगी में हैं? यदि हैं, तो क्या एजुकेशन केवल स्किल देने के लिए है, कुछ नॉलेज को गेन करने के लिए है, या इस दिशा में कुछ सोच सकता है? दूसरा प्रश्न मेरे मन में एक और आता है। बच्चों के लिए तो शायद आपने सोचा होगा, और चाहे तो आप चैट का यूज करके मुझे बता भी सकते हैं कि ऐसा आपने बहुत सारे बच्चों में देखा होगा। पर सवाल अगला ये भी आता है कि क्या ये समस्याएं आपकी जिंदगी में नहीं है, या हम बड़ों की जिंदगी में नहीं? यदि ये समस्याएं हमारे बच्चों की जिंदगी में है, हम बड़ों की जिंदगी में है,
कारण क्या है इन सब समस्याओं का, और यदि कारण पकड़ में आ जाए तो समाधान ढूंढने का वक्त है। समाधान हम ढूंढे कैसे? तो हैप्पीनेस करिकुलम जो लॉन्च किया गया 2018 में, उसका मकसद यही रहा कि एजुकेशन में हम बच्चों के एक आयाम पर तो काम कर पा रहे हैं, बच्चा आने वाले वक्त में अपने पैरों पर खड़ा हो, यानी अब जीने के लिए वो सफिशिएंट कमा सके, वो तो हम दे पा रहे हैं। वो इतना नॉलेजेबल हो कि अपने डे टू डे की जो बातें हैं, जो डील है, उन्हें वो कर सके। लेकिन वो डील कैसे बेहतर तरीके से कर सके? क्या जब वो खुश दिखता है तो वास्तव में खुश होता भी है? फोटो खींच करके फेसबुक पे डाल दिया, बहुत ही सुंदर फोटो, स्माइलिंग फोटो, शानदार, उछलते हुए कूदते हुए, पर क्या अंदर से वो खुश है? और यदि उस पल खुश है भी तो क्या वो खुशी उसकी बरकरार रह रही है? तो हैप्पीनेस करिकुलम का एक कोर इंटेंट है कि यदि कोई खुश नहीं है तो वो खुशी की तरफ बढ़े। यदि कोई खुश दिखने के प्रयास में है तो सच में उसके अंदर से वो खुशी आने लग जाए। अब इन्हीं बातों को लेते हुए इसके कोर डिजाइन में ये 3 कोटेशंस आप देख सकते हैं। अब महात्मा गांधी जी के अनुसार से आप देखें तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम कहते हैं, जैसा हम करते हैं, यदि वो हार्मनी में है तो हमारी हैप्पीनेस है। ये नागराज जी कहते हैं कि यदि हमारे माइंड का स्टेट ऐसा है कि जहां कन्फ्लिक्ट फ्री हैं, हम सिनर्जी में हैं, तो वो हैप्पीनेस की स्थिति है। और ओब्रायन, इनका कहना है कि विदाउट एक्सप्लॉइटिंग अदर पीपल और एनवायरनमेंट, यदि हम कुछ ऐसा जी पा रहे हैं जिसमें वर्तमान भी खराब नहीं कर रहे हैं, मुझे खुशी चाहिए, ये तय है। हर व्यक्ति को खुशी चाहिए, ये तय है। लेकिन उस खुशी के पाने का तरीका क्या हो? मुझे खुशी चाहिए, पर मेरी खुशी से जीने का तरीका क्या हो? उससे दूसरे प्रभावित होकर के कैसी जिंदगी जिएंगे? क्या उधर भी हमारा ध्यान जाता है? क्या हम वर्तमान के किसी व्यक्ति को या भविष्य में किसी संसाधन और व्यक्ति को, आने वाली पीढ़ी को नेगेटिवली प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए खुशी के इन आयामों पर ध्यान दिलाने की एक कोशिश है कि खुशी तो हमें कुछ खाने पीने, गाना सुनने, खेलने कूदने में भी मिलेगी, पर टिकेगी कितनी देर? जैसे ही बच्चे का ध्यान इस तरफ जाता है या हमारा ध्यान इस तरफ जाए कि कुछ अच्छा खा लिया या कुछ अच्छा सुन लिया, से ऊपर एक चीज संबंधों में मिलने वाली खुशी है। यदि वहां ध्यान जाता है, ये बातें हैं ऑलरेडी हमारे अंदर, तो मगर ध्यानाकर्षण की कोशिश है। कई बार एक प्रश्न उठता है, बच्चे तो खुश होते ही हैं, आप उन्हें हंसते मुस्कुराते देखते ही हैं, फिर हैप्पीनेस करिकुलम क्यों? तो सवाल वहीं उठता है, बड़ों में से वो खुशी फिर कहाँ चली गई? हम भी तो कभी बच्चे थे। तो यदि हम उस बच्चे के उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को बचाए भी रख पाते हैं, यदि किसी में कुछ अच्छाई है वो बची रह जाए, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है वो सुधर जाए, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि वातावरण खराब हो रहा है, उसे ऐसा वातावरण मिल जाए कि ध्यान वहां चला जाए। तो ऐसी ये कोशिश है कि व्यक्ति का ध्यान अपने संबंधों की ओर जाए, नहीं तो माँ बाप घर से बाहर निकाले ही जाते हैं। बुजुर्ग अपने वृद्धाश्रमों में भेज जाने की कड़ी तो आप देखते ही होंगे, लाइन लगी रहती है। तो पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, या पैसा हमारे जीने के लिए एक आधार हो सकता है, पर उससे ऊपर भी कोई चीज है। उसके बाद एक और बात आती है कि ये खुशी हमारी सस्टेन करने लग जाए तो बात कुछ और होगी। और ये होगी कब? जब हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, हमारा अल्टीमेट गोल क्लियर होगा। एक प्रश्न उठता है कि एजुकेशन क्यों? यदि शिक्षा से हम व्यक्ति की जिंदगी को संवारना चाहते हैं तो उसके अल्टीमेट गोल के लिए शिक्षा क्यों नहीं? एजुकेशन सोसाइटी को यदि एक बेहतर कल देना चाहता है तो बेहतर कल आने के लिए जो कोर बात होनी चाहिए जिन मुद्दों पर, वो आइटम मिसिंग क्यों है एजुकेशन से? वो क्यों नहीं अपने रिलेशंस को टटोले? क्यों ना वो अपने अंतर मन को टटोले, अपने सेल्फ को टटोले, और वो उस क्लैरिटी के साथ जिए कि एक्चुअली मेरी नीड क्या है और एक्चुअली मैं पाना क्या चाहता हूं जिंदगी से। संबंधों में जीने का तरीका क्या हो कि मैं भी खुश रहूं और दूसरे जो मेरे साथ हैं वो भी खुश रहें।
तो इसी कोर इंटेंट के साथ ये हैप्पीनेस करिकुलम है। और यहाँ जो हम कुछ बातें लेकर चलते हैं वो ये है कि फाइनली वक्त लगेगा। कई बार लोग जल्दबाजी में होते हैं, कहते हैं कि 4 साल हो गए, क्या निकला। किसी के भाव और विचार में बदलाव इतनी जल्दी नहीं आ जाए। हाँ, ये हो सकता है उन्हीं में से कुछ ज्यादा सेंसिटिव लोग कुछ होंगे, वो जल्दी उनमें परिवर्तन कहीं दिख जाए। तो फिर हैप्पीनेस करिकुलम करता क्या है? नॉक नॉक, ठकठकाता है। आपका ध्यान यहाँ गया क्या? आपने इस बात पे गौर किया क्या? ये नॉक नॉक वाला काम करता है हैप्पीनेस करिकुलम। उसमें किसका कौन सा पक्ष कब बदल जाएगा ये वाली कोई बात नहीं होती। हो सकता है किसी का एक आयाम सुधर जाए, किसी का दूसरा आयाम आज के डेट में बदला हुआ दिख जाए, पर उम्मीद यही है कि वातावरण यदि हम देते रहे तो आने वाले वक्त में स्थिति बहुत सुंदर होगी। तो यहाँ हम हार्मोनियस लिविंग की जब बात करते हैं तो चारों स्तरों पर उसमें हार्मनी आए, ऐसी कोशिश रहती है इस करिकुलम में। और वो है सेल्फ में पहले वो देखे कि उसके भाव, विचार और कार्यों में कितनी हार्मनी है। फैमिली में वो अपने रिलेशनशिप में हार्मनी में जीने की तरफ बढ़ सके, और फैमिली को एक यूनिट के रूप में देखें तो सोसाइटी में हार्मनी की तरफ वो जा पाए। और वहां से फिर नेचर पर भी उसका ध्यान जाए कि नेचर और वो खुद पूरकता में है, कंप्लीमेंट करने के लिए है। यदि कोई किसी का शोषण करेगा तो अल्टीमेटली उससे प्रभावित हुए बिना वो भी नहीं रह पाएगा। मिस्टर झा, बस 1 मिनट, आपकी पीपीटी आप मूव कर रहे हैं क्या? जी, आपके जो स्लाइड्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं? मेरी ओर से तो मूव हो रहे हैं। अच्छा, आगे नहीं जा रहा क्या? नहीं, वो पहले स्लाइड पर ही है। पहले पर ही है, पता नहीं। लगा यहाँ तो मूव कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो इससे मैच नहीं कर रहा है। हम अच्छा, पहले स्लाइड पर ही हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मेरी ओर से तो मूव किया है, एक बार देखिएगा। क्या अब कुछ दिख रहा है या दोबारा से मैं एक बार ट्राई करता हूँ? आप, हाँ, मैं इसे कर बोल रहे हैं ना, वो स्लाइड से मैच नहीं कर रहा था। अच्छा, वो थैंक यू इस बात पर ध्यान दिलाने के लिए। मैं एक बार दोबारा इसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। क्या अभी आपके स्क्रीन पर सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, नेचर ये दिख रहा है? अब दिख थैंक रहा यू। है। तो फिर बात आती है कि एक्चुअली कब वो स्थिति आ पाएगी जब हम हार्मनी इन चारों मामलों में देख पाए। तो सेल्फ के एक्सप्लोरेशन से लेकर के फैमिली के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हुए, सोसाइटी में अपने फैमिली के पूरकता को देखते हुए, यानी कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप को देखते हुए, नेचर को भी वो कैसे उस रूप में देख पाए कि वो भी उसे कंप्लीमेंट करने के लिए। तो जो जो फिर जीना होगा वो शायद सभी का खुशहाली भरा होगा। क्या अब स्क्रीन पर कंटेंट चेंज हुआ? ठीक है, थैंक यू। तो फिर हैप्पीनेस क्लास के इंटेंट, कंटेंट और अप्रोच की बात रखें तो हैप्पीनेस क्लास के इंटेंट के रूप में आप देख पा रहे होंगे कि टू मेक एवरी चाइल्ड अ सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, यानी वो सेल्फ डेवलपमेंट को देख पाए। सेंसरी हैप्पीनेस ठीक है, हर व्यक्ति के जिंदगी में है, पर वहां से कैसे वो अपने आप को ऊपर उठाते हुए सस्टेनेबल हैप्पीनेस के आयामों को देख पाए, और उस ओर उसका ध्यान जाने से किस उसका व्यवहार बदलेगा और वो समाज में हार्मोनियस लिविंग को हम इंश्योर कर पाएंगे। इसके लिए जो कंटेंट रखा गया है, जो हैप्पीनेस की हैंडबुक है टीचर्स के लिए, उस हैंडबुक में 4 आयाम हैं: माइंडफुलनेस, स्टोरीज, एक्टिविटीज और एक्सप्रेशंस। और उसमें भी स्टोरीज और एक्टिविटीज एक्चुअली स्टोरी बेस्ड डिस्कशन है, एक्टिविटीज एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड डिस्कशन है। तो कोर आइडिया जो है कि डिस्कशन का ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां बच्चा, आप देखेंगे नीचे जो लिखा हुआ है अप्रोच में, इन 3 E's का मौका पाए, यानी खुद को एक्सप्लोर कर सके, खुद के वातावरण को एक्सप्लोर कर सके, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हुए अपने वातावरण को भी एक्सपीरियंस करता चले, और खुल करके अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके क्लास में भी और अपने जीने में भी, यानी केवल बातों बातों से बात नहीं बनेगी। तो जब वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बात शब्दों की कर रहा हो, तो वही कहीं उसका ध्यान उन बातों पर जाए जिससे कि वो अपने जीने में भी उन्हें एक्सप्रेस कर रहा हो,
और इसीलिए जो आप देख रहे होंगे चौथे आयाम एक्सप्रेशंस को एक्चुअली एक्सप्रेशन डे के रूप में सैटरडे को या लास्ट वर्किंग डे जो सप्ताह का होता है उसके रखा गया है, जिस दिन बच्चे के जीने के आयाम से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न होता है जो मूल्यों पे आधारित होता है। तो अब होगा क्या जब बच्चा अपने जीने को देखेगा, सप्ताह भर उसने बहुत सारी बातें की, कहानियां सुनी, चर्चाएं की, कहानियों पे आधारित चर्चा करना एक बात, पर अपनी जिंदगी को टटोल लेना दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तो वहां उसका ध्यान जाए, ये इसकी कोशिश है। तो इन्हें आपके सामने कुछ इस तरीके से चारों पेडागोजीज को रखा जा रहा है कि हैप्पीनेस क्लास में हम कोशिश इस तरह से करते हैं कि माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज मंडे को और बाकी दिन शुरुआत कक्षा के शुरुआत में उसकी अवेयरनेस को लाने के लिए, उसे और फोकस्ड बनाने के लिए हम रखा गया है। और ये एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मौका भी देता है। जब भी कोई व्यक्ति, यदि मैं माइंडफुलनेस के डेफिनेशन के एक पार्ट को आपके सामने रखूं, तो जब भी कोई व्यक्ति नॉन जजमेंटल होकर के चीजों को जो जैसा है उसे वैसा देखना शुरू कर देगा, तो उसके अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट भी दूर होंगे आसानी से, और सोसाइटी में भी जब वो चीजों को डील कर रहा होगा, कन्फ्लिक्ट जहां कहीं भी पैदा हो रहे होंगे, जब वो नॉन जजमेंटल हो करके घटना को घटना के रूप में, वस्तु को वस्तु के रूप में, और व्यक्ति को एक व्यक्ति के बातों को, उसके कार्यों को नॉन जजमेंटल होकर देखना शुरू करेगा, प्री नोशंस को लेकर के, प्रेजुडिसेस को लेकर के वहां वो नहीं होगा, तो उसके निर्णय ज्यादा सही होने की गुंजाइश है। तो माइंडफुलनेस का ये मकसद है। और स्टोरीज जो है उसके रिफ्लेक्शन के लिए हैं, एक्टिविटीज के क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, और साथ के साथ उसे ऐसा माहौल देने के लिए जहां वो एक्सपीरियंस कर सके उन वैल्यूज को, तो वो उसे जल्दी कनेक्ट करेगा अपनी लाइफ से, और जो एक्सप्रेशंस हैं उसे ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आर्टिकुलेट करने का मौका देगा। हैप्पीनेस करिकुलम में, बस अब क्लोज करने की तरफ आता हूँ, समय हो रहा है। हैप्पीनेस करिकुलम में एक और खास बात ये है कि उसमें हम घर जाकर देखो पूछो समझो का एक काम देते हैं। अब इसमें क्या है कि बच्चे ने जो कुछ भी इस क्लास में डिस्कस किया, कुछ तो वो वाली बातें घर जाके सुनाएगा, और एक प्रश्न उसके घर में जाकर के मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, जो भी उसके आस पड़ोस में है या घर में है, उनके साथ वो चर्चा करेगा। यानी बच्चे को स्कूल में जो वातावरण मिला वो घर में भी पहुंचना शुरू हो, घर में भी मम्मी पापा, भाई बहन का भी ध्यान उन मुद्दों की तरफ जाने लगे, घर में भी एक सार्थक चर्चा का माहौल बनने लगे। इसके लिए घर जाकर देखो पूछो वाला आयाम रखा गया है। तो कुछ इस तरीके से जोड़ने की कोशिश है, और उम्मीद यही करते हैं कि वक्त चाहे थोड़ा लग जाए, पर वो वक्त आ जाए जबकि व्यक्ति अंदर से तो खुश होगा, और उसकी अभिव्यक्ति उसके परिवार और समाज में खुशहाली के साथ होगी। शुक्रिया। Thank you very much for that talk. हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में तो हम सबने न्यूज़पेपर, वही अगेन न्यूज़पेपर और मीडिया से ज्यादा सुना है, स्पेशली इसका जब इनॉग्रेशन हुआ था His Holiness. But it is very rare that we actually get to hear, and I am quite delighted that through this happiness curriculum also you are trying to implement things which are actually relevant, and very importantly connecting students' homes with the schools, and encouraging a more holistic development, critical thinking, mindfulness, etc. So that आजकल जो आपने शुरुआत ही किया, I don't have to say it again, with the kind of stress, the kind of stressful environment, especially for the parents and for the students also. So hopefully this will get implemented deeper and more ingrained, and we continue to benefit, our students continue to benefit from this curriculum. So I really want to thank all our speakers, and especially also for keeping to the time. And now here Professor Rukmini can tell us how much time we have, because I think it would be helpful to have at least some questions from the audience, and we can do it in two ways. Either
you could, unmute yourself and, I don't know if I've forgotten Zoom, if there is a way to raise your hand, or you could even type your questions, and I can take up the questions if you are unable to unmute yourself. There is a way to raise hands. Okay, all right. In the reactions. Okay, So all right. Okay. So I think that we could do another 10 to 15 minutes, Sunita. Right. Okay. Okay. So I think we can, even if you have any comments, that is also, we can begin with comments also. So, but I found all the three talks quite, in some ways, connecting. There is an overall theme. Whether it was, whether we are talking about happiness or entrepreneurship, we are, considering and taking into account the background of the students. We are ensuring that the curriculum actually connects with the students who are in the classroom, and that is the most relevant, because, this is where the role of the teacher becomes important, because we know that, you cannot have a curriculum which is divorced from the teacher. That is why teachers are, so important in our systems. So do we see any hands? Let me see. Any hands? If you have Can I maybe ask a question as people start to think, or yeah. Can I go ahead? Okay. Please. So thank you very much, all of you. I was actually wanting to know from Avinash ji about, and I thought that this last slide of yours was so interesting, where you're connecting mindfulness, story, activity, and expression with with what is happening to the student through these. So I just want to know, and जैसे आपने कहा भी कि change आएगा भी तो वो time लगेगा, and I absolutely take that on board. 4 साल हुआ है, 4 साल में ही सब कुछ तो बदल नहीं जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कहेंगे कि students का response क्या है happiness curriculum को लेके, how is it that they talk about it, and क्योंकि this is also very clear कि आप लोग बच्चों के साथ बहुत time, you are spending a lot of time, there is clearly a lot of personal and collective attention. तो इसलिए भी मैं सोच रही हूँ कि I am sure you will also understand कि बदलाव कैसे हो रहा है students में, तो उसमें अगर मालूम है कि ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा। जरूर। देखिए, हमारे मन में भी आया कि हम भी जरा देखें कि बदलाव कितना कहाँ पहुंच पा रहा है, और इन्हीं बातों को लेकर के जो चेंज स्टोरीज हैं हमने स्कूल से कलेक्ट करने की कोशिश की कि स्कूलों में जहाँ कहीं भी हो सकता है कि जहाँ पे 40 बच्चे बैठे हों, उनमें 1-2 में अभी दिखने लग गया हो, कुछ में दिखेगा की संभावना हो। तो रिसेंटली ही लगभग 2-2.5 महीने ही हुए हैं, हैप्पीनेस क्लास बदलाव की कहानियां एक सीरीज हमने शुरू की है YouTube पर। आप उनमें बच्चों के जो एक्सप्रेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। ये DOE के हैप्पीनेस चैनल पर है, तो वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बच्चे अपने चेंजेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दूसरी बात, वहां पे एक और बात आप देख पाएंगे, केवल वो बच्चे ही नहीं, उस सेशन में वो स्टूडेंट, उनका हैप्पीनेस टीचर और उनके हैप्पीनेस टीचर कोऑर्डिनेटर, और यहाँ तक कि उस बच्चे का के या तो माता या पिता, यानी माँ या पिता उसमें शामिल है। यानी कोशिश ये भी है कि जो बात वो कह रहे हैं थोड़ा सा वेरीफाइड हो जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से क्रॉस चेक भी हो गया, साथ में सबका ट्यून्ड है मामला ये भी दिखा। साथ एक बात और भी हो गई, जिस व्यक्ति ने कहीं पर इस तरह से कुछ कहा है तो उसके जीने का वो आयाम होगा, ऐसी संभावना बहुत होती है, क्योंकि इतने स्टेक होल्डर्स उसके साथ बैठ करके चर्चा में शामिल है।
उन बातचीत के दौरान हमारे हैप्पीनेस टीचर्स ने भी अपनी जिंदगी को वहां टटोल करके रखा है, अपनी जिंदगी के बदलाव के पक्षों को भी रखा है। तो एक्चुअली हैप्पीनेस करिकुलम में बदलाव की यदि बात करें तो हैप्पीनेस करिकुलम तो नीड मेरी भी है। यदि मैंने तो अपनी जर्नी को जब देखा तो मैं पाता हूं कि अभी तो मुझे खुद पे बहुत काम करना है, पर हाँ, इस यात्रा में अपने बदलाव को भी कुछ देख पा रहा हूँ। तो इससे जो भी जुड़ा व्यक्ति है, चाहे वो टीचर क्लास में ट्रांजिट कर रहे हैं तो वहां वो भी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो अपने बदलाव को भी देखते हैं। साथ में कुछ रिसर्चेस भी किए जा रहे हैं कि हम देख सकें कि क्लासेस में कितना कुछ बदल पाया है, बच्चों तक कितना पहुंच पाया है। तो एक तो हैप्पीनेस क्लास बदलाव की कहानियां सीरीज आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, वहां से कुछ आइडिया लग जाएगा। 10 एपिसोड्स हो चुके हैं, साथ में कुछ रिसर्चेस हुए भी हैं और हो रहे हैं, जहां से आपको इसकी जानकारी और विशेष मिलेगी। छिटपुट ही सही बदलाव आ रहे हैं, ये भरोसा तो बना है। जी शुक्रिया। So there are two hands. Gunjan is first and then Ruchi. So Gunjan, please go ahead. Right, thank you, Sunita. आप तीनों ही स्पीकर्स की बात सुन के एक सवाल जो आता है वो ये है कि स्टूडेंट्स तो बच्चे तो हमारे स्कूल एजुकेशन के डिस्कोर्स में बहुत सेंट्रल रहते ही हैं, इवेंचुअली उन्हीं के लिए सब काम हो रहा है, लेकिन कई बार हम टीचर को उसमें भूल जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि इनोवेशन करना स्कूल में, बदलाव लाना, हैप्पीनेस की बात करना, वैल्यूज की बात करना, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करना, इस सभी के लिए टीचर्स को भी कई लेवल्स पर बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी और कई लेवल्स पे प्रिपरेशन भी करनी होती होगी, ना ही सिर्फ पढ़ाई के लेवल पे बट पर्सनली अपने रीओरिएंटेशन के फॉर्म में भी। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा कुछ बता पाएँ कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं खुद को, और जो चैलेंजेस स्कूल में आप फेस करते हैं, कई तो चीज़ें ऑफिशियल ट्रेनिंग के थ्रू होती हैं, पर जो चैलेंजेस आप फेस करते हैं उसको आप खुद अपने लेवल पर कैसे समझते हैं, रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, अगर आप इस पे थोड़ा बता पाएँ तो हमें भी मदद मिलेगी, क्योंकि हम भी इस तरह के रिफॉर्म्स और इस तरह के टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस की तरफ करते भी हैं, पर स्पेसिफिकली इन्हीं आइडियाज से इम्पोर्ट करके हम करिकुलम चेंजेस कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पर कर रहे हैं। जी तो अविनाश जी आप जवाब दें या मैं दें? देखिए, अब जिनसे भी प्रश्न हो आप दें या मैं दें। जी तो EMC का मैं बता देता रुचि हूँ। का क्वेश्चन आने के पहले एक रिलेटेड क्वेश्चन है शायद, दिशा का है। वो ये भी पूछ रही हैं कि what kind of challenges did you face in this journey, how did you handle that? So मेरे ख्याल से ये गुंजन के सवाल से थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो अगर आप तीनों ही थोड़ा थोड़ा बोल सके तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। और बोलने से पहले सॉरी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि Dr. Gunjan is faculty in the School of Education Studies, and she runs a course there which is called Curriculum Theory and Practice. और आज गुंजन के सभी स्टूडेंट्स भी आए हैं इस ये सुनने के लिए। I just thought that I should say that Gunjan is our faculty at school. नरेश जी। हाँ, तो डॉक्टर गुंजन एंड रुचि जी, आपका जो क्वेश्चन है कि इसको हम प्रॉब्लम्स तो आती हैं, क्योंकि नया करिकुलम कोई हम लॉन्च करते हैं तो उसकी पेडागोजी बिल्कुल डिफरेंट है। अभी इसका सबसे एक तो आपने आंसर दे दिया कि ट्रेनिंग पार्ट्स हमने बहुत करवाए। EMC को लेकर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो 9th to ऑनवर्ड ये चलता है, 9th, 10th, 11th, 12th ऑलमोस्ट सभी टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है। और इसका प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस इस वजह से सबसे पहले हेड ऑफ द स्कूल्स की ट्रेनिंग करवाई गई। हेड ऑफ द स्कूल्स की ट्रेनिंग कराई और स्कूल के अंदर एक EMC कोऑर्डिनेटर है जो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है हमारी कोर यूनिट से, जो SCRT की कोर यूनिट है उससे कनेक्ट रहता है, और वो अपने डे बाई डे के डेली क्वेश्चंस वहां रेज कर सकता है अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। पेडागोजिकली सपोर्ट हमारे मेंटर टीचर्स करते हैं, स्कूल में जाकर भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल पे भी करते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, जैसे कि सबसे बड़ा सीड मनी को लेके एक इशू चेंजेस आते रहते हैं कि कब उसको फिट करना है, सीड मनी को पैसा आया कि नहीं आया, तो वो वहां से सॉर्ट आउट होता रहता है। ग्रुप में वो ओपनली डाल सकते हैं अपने चैलेंजेस को, और वहां से हम उनको रिव्यू करते हैं, उनको रिवॉक करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए जो ऑब्जर्वेशन पार्ट है, ऑब्जर्वेशन पार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। EMC कोऑर्डिनेटर को वीकली 2 क्लास कम से कम उसको इसमें ऑब्जर्व करनी है,
HOS भी इसमें ऑब्जर्व करते हैं, मेंटर टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं। TDC का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर है हमारे हर एक स्कूल के अंदर, जो नॉट ओनली EMC बट आल्सो ऑल इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को वो देखते हैं कि वो किस फॉर्म में चल रही है, क्योंकि TDC की वो ही और सी द एकेडमिक लीडर ऑफ द स्कूल, तो वो टोटली उसको वॉच करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं, और चैलेंजेस जो है मेंटर टीचर्स को वो बताते हैं। एक मेंटर टीचर के पास डॉक्टर गुंजन 4 से 5 स्कूल होते हैं, और वो बहुत, अभी मेरे कुछ TDC भी जुड़े हुए हैं, मैंने लिंक भेजा था तो वो भी सुन रहे हैं इन बात को कि वो डेली उनकी कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, विद इन हाफ एन आवर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चैलेंजेस आते हैं क्योंकि नई पेडागोजी है, नई चीजें हैं, लेकिन हाँ ये है कि DOE का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चैनल बना हुआ है। SCERT का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ है। SCERT के साथ हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जोनल लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, जिनको हम इन सबको सॉर्ट आउट करते हैं। और हमारा एक जो मेंटर टीचर्स का ग्रुप है वो हमारा DOE लेवल पे बना हुआ है, अगर उस पे हम वहाँ भी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं और कोई चैलेंजेस है उसको हम वहाँ रख सकते हैं। और सबको पता है कि अगर ये प्रॉब्लम कोई रेज होती है तो वो किसको बतानी है, तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। तो इस तरह से ये जितनी भी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो उनको हम फेस कर पाते हैं और उनको हम सॉर्ट आउट की तरफ लेके जा पाते हैं। शायद मुझे लगा होगा कुछ आपको मिला होगा आंसर, फिर भी कुछ लगता है तो आप पूछ लीजिएगा दोबारा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, go ahead. Ms. Gulati, would you like to add to that? Yeah, okay. So thank you, Dr. Gunjan, for raising that question and concern. जो आपने बात कही ना कि टीचर्स को तो प्रिपरेशन करनी पड़ती होगी और करनी होती है. So I think teachers, so we all know we have to be constantly on the learning spree. And in fact, जब नहीं पढ़ रहे होते या जब नहीं नया कुछ सीख रहे होते, children make you realize the next moment कि कुछ नया है नहीं आज क्लास में. So वहाँ पे एक अपने आप ही basically you have to go back home. You have to learn something new. You have to learn what's going around. Sorry, मैं थोड़ा silent हूँ because जी. And एक आपने बहुत beautiful question पूछा. I think it was a very dense question that what when we face challenges, what really happens actually. So मुझे लगता है कि मेरा जो experience कहता है कि मतलब मैंने मतलब 3 different ways से कुछ challenges को overcome कर पाए हैं. एक तो experience ही challenge overcome करने में help करता है. So मैं अपने ही एक जो मैंने share किया था उसका एक quick example लेती हूँ और अपनी बात को share करती हूँ. So like I said कि music and dance के through मैं English पढ़ा रही थी. So the challenge was कि मुझे ये लगने लगा कि पेरेंट्स को ये ना लगे कि इंग्लिश सॉन्ग्स करवा रही है तो बच्चे घर जाके अगर वो वीडियोस देखेंगे और उनको कुछ malicious content लगे या in terms of the background that they come from, तो उनको वो ये ना लगे कि अरे ये इंग्लिश सॉन्ग्स क्यों सिखा रही है टीचर, हमारे बच्चे इंग्लिश के गाना बजाना सीखेंगे. मतलब कल्चर morally they would actually link it to some sort of moral degradation. ये एक challenge था मेरे लिए, लेकिन I wanted to try this innovative pedagogy कि क्या होता है जब म्यूजिक और डांस सीखते. तो I think बहुत चीजें एक्सपीरियंस से समझ आती हैं. But one of the most beautiful ways of overcoming any challenge in the classroom is dialogue. बच्चों से बातचीत करके मुझे लगता है जो challenges overcome होते हैं ना, वो मुझे लगता है बहुत important है. A dialogue with the students actually help you channelize your energy in a direction जो challenge को overcome करने में कुछ help करता है. बच्चों से ही पूछ लेना कि ये गड़बड़ हुआ क्या, ये ठीक नहीं लगा क्या, and then they feel then they open their
hearts in sharing कि हमें ये ठीक नहीं लगा, ये अच्छा लगा. So that's another way. So one is your experience, one is dialogue, और एक reflection मुझे बहुत important लगता है. You know, when I get back home, I maintain a diary. I, you know, sometime jot down some points जो भी उस दिन का हुआ. That helps me, you know, in that reflection process कि, you know, where were the moments when I went wrong as a teacher, जहाँ कुछ और scope था improvement का. तो ये सब challenges जो हैं, जो भी everyday life में आते हैं, I think we overcome those challenges with dialogue with different stakeholders, with reflections and with experience. Thank you. आप बोलना चाहेंगे कुछ हैप्पीनेस का? हैप्पीनेस के लिए एक और आपके लिए एक और सवाल है यहाँ पर. आप पहले बोलिए, फिर मैं पढ़ के बताती हूँ. तो जहाँ तक बात है चैलेंजेस की, तो एक बड़ा चैलेंज तो यही आया हैप्पीनेस करिकुलम के लॉन्च करने के बाद कि उसके एक्सेप्टेंस को लेकर के. एक जो पहले से जितने जो हमारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, एक सब्जेक्ट का एडिशन हो जाना, अब इसे कैसे मैनेज किया जाए. तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकला कि वही वाली बात जो मनु जी ने कही, डायलॉग. ये और डायलॉग भी कैसे जगह पर, इस भरोसे वाले वातावरण में कि हाँ आपको सुना जाएगा. तो वो टीचर से बातचीत और टीचर्स तक वो पहुंच जाना कि क्यों करें. यदि इंटेंट को उन्होंने पहचान लिया कि आज की नीड को की फुलफिलमेंट के लिए है, तो बात बननी शुरू हो जाती है. जैसे बहुत सारे टीचर्स ने जब ये पहचाना कि हाँ वास्तव में समस्याएं तो हैं और इस पर काम करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट टीचिंग के समय वक्त निकल नहीं पाता. हम चाहते तो हैं, करते भी हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते ये तो हम भी जानते हैं कि हर चैप्टर के साथ हमारे पास एक अवसर तो होता है इन मुद्दों पर बात करने का, पर कितना होता है, सिलेबस से हम बंधे होते हैं. तो जैसे जैसे टीचर्स को समझ में आया कि एक्चुअली हैप्पीनेस क्लास वही स्पेस हमें दे रहा है जिस स्पेस की हमें चाहत तो थी लेकिन मिल नहीं पा रहा था. और ये इस पर काम नहीं करेंगे तो हम खुद प्रभावित कितना होंगे वो भी एक बात है. हमारे समाज में हम जहाँ जाएंगे वहां पर कैसा वातावरण हमें जीने को मिलेगा वो भी देखने की बात है. तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन कैसे प्रभावित होगा उस पर ध्यान जाना. यानी जब नीड समझ में आई तो वहां से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ. धीरे धीरे ऐसे टीचर्स की गिनती बढ़नी शुरू हुई जब उन्होंने इस नीड को पहचाना. दूसरा जो हैंडबुक बनाया गया है, हैंडबुक इस तरह से बनाया गया है जैसे कि लेसन प्लान हो. यानी टीचर को अलग से कुछ लेसन प्लानिंग की जरूरत नहीं है. वो बिल्कुल इसी तरह से है कि यदि टीचर ने एक नजर उस पर डाल दी, बकायदा ये भी कहा गया है कि आप क्लास में हैंडबुक लेके जाएं, जरूरत हो तो उसे आप रेफर करें, स्टोरी तो उसमें से पढ़ के सुना दें, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चंस बिल्कुल देख के आप रख दें उनके सामने, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. और उन क्वेश्चंस में खुद भी भागीदारी निभाएं, यानी कि आप भी उन प्रश्नों का जवाब बच्चों से शेयर करें. वातावरण में खुद को जब मौका मिला इन्वॉल्व होने का, तो ये भी इसने भी बदलाव लाया. यानी एक तो क्लास के लिए एडिशनल प्रिपरेशन को लेकर ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, ये भी एक पक्ष है क्योंकि लेसन प्लान मिला. दूसरी एक और खास बात ध्यान में रखी गई हैप्पीनेस हैंडबुक में कि इसमें टीचिंग एड की जरूरत ना पड़े. बिल्कुल बहुत ही कम, कहीं किसी लेसन में थोड़ा बहुत यदि है तो है, नहीं तो उसमें एक जनरल एक बात सोच के चली गई थी कि इसमें किसी तरह के मटेरियल्स की नीड न बने, जिससे कि एडिशनल मेहनत ना करना पड़े, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक कारण और बन जाए इसे हम कैसे एग्जीक्यूट करें. और इसके साथ साथ बातचीत चलती रही, उसने भी काम को आसान किया और इसलिए एक मैकेनिज्म बनाया गया. स्कूल लेवल पर हैप्पीनेस टीचर कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर जो कि उनसे कनेक्टेड रहते हैं. और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स की पूरी एक टीम एक ग्रुप के रूप में है, जहां वो ग्राउंड से यदि कोई ऐसी समस्या आई जो उनसे डील नहीं हुई और उस पर काम करने की जरूरत है, तो वहां जो अन्य अधिकारी गण हैं वो भी उसमें शामिल हैं. वहां तक बात पहुंचती है और वहां से फिर सॉल्यूशन फिर हम लेकर के नीचे की तरफ पहुंचते हैं. तो पूरी कोशिश है कि एक सहज वातावरण में चीजें हों और जो बाकी जो जितने भी लिंक को बनाने वाले लोग हैं वो कहीं भी इंस्पेक्शन मोड में नहीं होते हैं. वो सपोर्ट करने के लिए हैं
ऑब्जर्व करके उन्हें गाइड करने के लिए है, फीडबैक भी कंस्ट्रक्टिव वे में देने के लिए है। तो ये भी हमारी एक बड़ी ताकत बन जाती है कि टीचर्स को ये नहीं लगता कि हमारी कमियां निकालने कोई आ रहा है, तो हम सब मिल करके एक अच्छे टीम की तरह काम कर पा रहे हैं। शुक्रिया। एक और सवाल है, रुचि का हाथ काफी टाइम से है। रुचि। Yes, ma'am. Hello. Thank you for this enriching session. I have a question, rather query for Avinash sir. Sir, at times playfulness and the consciousness of young minds are portrayed as not a good quality by comparing with the monkey's habit of not sitting at one place for a longer duration. And for that, numerous examples of referring scientific theories were given for such statements like वैज्ञानिकों ने मनुष्य के मन को बंदर का मन, मंकी माइंड इन ब्रैकेट्स कहा है। जिस प्रकार बंदर एक जगह पर टिककर नहीं बैठ सकता, वह एक से दूसरी जगह उछलता कूदता रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी दौड़ता रहता है। So if you could refer the theory referring, as I'm unable to trace, and many mindfulness activities are emphasized in the manual from an corrective viewpoint. I am unable to understand how the happiness period will make children happy if in other periods students might not get that much free and happier environment, or even facing scolding, beating, which I witnessed during my visit to Delhi Government School. Thank you. जी हाँ, सुनीता जी आप कुछ कह रही थी। नहीं, मैं बस ये बोली थी, रुचि भी हमारी पीएचडी स्कॉलर है। रुचि ने अपना मास्टर्स डिसर्टेशन हैप्पीनेस करिकुलम पर किया है। सो मैं बस ये बोल रही हूँ कि बहुत पैशन के साथ ये सवाल पूछ रही है आप लोगों से। जी जी, ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरह के क्वेश्चंस का आना, क्योंकि कई बार कुछ चीजें लोग मन में दबा लेते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि वो जो कई जगह माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस पर जोर दिलाने के लिए इस तरह की बातें कह दी जाती हैं कि मंकी माइंड है हमारा, और बात केवल बच्चे की नहीं, हमारे लिए भी कही जाती है, हम बड़ों के लिए भी, कि हम भी इस पल कुछ और सोच रहे होते हैं, अगले ही पल कुछ और सोच रहे होते हैं। तो मेरा ध्यान जहां जाता है वो मैं रख देता हूं कि हमारे मन में चंचलता है, ये अपने आप में गलत है, ऐसा हैप्पीनेस करिकुलम नहीं कहता। हैप्पीनेस करिकुलम एक बात, उसकी जो कोर में एक बात है वो ये है कि कोई किसी चीज को नेगेट करने की बात हैप्पीनेस करिकुलम नहीं कह रहा। हैप्पीनेस करिकुलम कह रहा है कि एप्रोप्रिएटली चीजों को प्लेस किया जाए। यानी यदि यहाँ पर माइंडफुलनेस जो रखा गया उसका जो मकसद को देखें तो वो ये है कि यदि एक स्टेबल माइंड के साथ चीजों के प्रति ऑब्जर्वेंट होते हुए यदि हम उसे मतलब माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो स्थिरता तो चाहिए। मुझे लगता है कि आप भी एग्री करेंगे। उस स्थिरता की तरफ लीड करने का प्रयास है, न कि रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियों को छोड़ने की बात। एक मिसकंसेप्शन इसी तरह का जुड़ जाता है कई बार, वो ये है कि जब हम कह रहे हैं मोमेंट्री हैप्पीनेस से सस्टेनेबल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने की बात, वहां भी कहीं मिसकंसेप्शन ना हो जाए। हम ये नहीं कह रहे यहाँ पर हैप्पीनेस करिकुलम में कि आपको मोमेंट्री हैप्पीनेस छोड़ देना है, पर ध्यान बना रहे। आप यदि गुलाब जामुन खाएं बढ़िया बात, पर गुलाब जामुन मित्र के साथ और या अपनी बहन या भाई के साथ बांट के खाएं तो कैसी बात होगी। बस इतनी सी बात। तो इसी तरह से और सोचा जाए, और वही गुलाब जामुन एक डायबिटिक व्यक्ति खाए कि ना खाए बस वहां ध्यान दे दे, बस इतनी सी बात। तो सस्टेन कैसे करेंगे हैप्पीनेस। आते हैं वापस माइंडफुलनेस की तरफ। तो माइंडफुलनेस में मंकी माइंड से केवल रिलेट यहाँ किया जाता है चंचलता को बताने के लिए। एक वहां पर वो समझ पाए बातों को आसानी से कि जैसे बंदर कूदता फांदता रहता है, हमारे थॉट्स भी जो मन में आते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कूद फांद रहे हैं। तो उसे कैसे स्टेबल बनाया जाए, इसके लिए माइंडफुलनेस है। बच्चे की वर्तमान की उछल कूद की खुशियों को छीनना कहीं भी उचित नहीं होगा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से तो लगता है। जी। एक और रिलेटेड सवाल है, ये चैट बॉक्स में है। ये सवाल मिंसी ने पूछा है, ये भी हैप्पीनेस करिकुलम से रिलेटेड है, आप भी देख सकते हैं शायद। इनका सवाल है, इन दीज टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड डिसकंटिन्यूटी, हाउ डज हैप्पीनेस करिकुलम एंगेज कंस्ट्रक्टिवली विद चिल्ड्रन एंड कनेक्ट विद देयर एक्सपीरियंसेस। जी रिलेटेड है, लेकिन अगर आप कुछ बोलना चाहें। हाँ बिल्कुल।
तो एक्चुअली ये जहां तक मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, ये कोविड टाइम्स के से काफी हद तक कनेक्टेड है ये क्वेश्चन। अफसोस अभी तक एक बात का तो है कि वो ऐसा दौर था जबकि सब बच्चे से जुड़ना बहुत मुश्किल था। जिनके पास भी डिवाइस कुछ रहे, टेक्नोलॉजी जिनके घर तक पहुंची रही, उन तक तो फिर भी कुछ बात पहुंच पाई। तो इसमें दो तरीके जो मेनली अपनाए गए, एक तो ये है कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जैसे कि हैप्पीनेस क्लास फॉर फैमिली एक सीरीज चलाई गई थी फर्स्ट कोविड के समय ही, जिससे कि घर में पूरा परिवार उस यूट्यूब पे उस सीरीज के साथ उन जो कहानी और गतिविधियां दी जाती थी उस पर वो चर्चा करते थे उन बातों को सुनकर। IVR का एक तरीका भी अपनाया गया जिसमें कि अब उन बच्चों का ध्यान रखा गया जिनके पास वो एंड्रॉयड फोन इत्यादि ना हो, तो वो बस एक मिस कॉल देते थे नॉर्मल फोन से, वहां से वॉइस मैसेज आता था जिसमें कि छोटी सी कहानी या माइंडफुलनेस की एक्टिविटी उन्हें सुनाई जाती थी और उसके आधार पे वो घर पे चर्चा करते थे। पर ये सब बातें तो टेक्नोलॉजी के, वहाँ पे ह्यूमन टच तो फिर भी घट ही जाता है। तो यहाँ काम आए हमारे वो डेडिकेटेड टीचर्स जिन्होंने फिर उन्हीं को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर आगे पर्सनल टच देते हुए बच्चों से जुड़ने का प्रयास किया। हाँ, फिर भी सब तक पहुंच पाना मुश्किल रहा। जब स्कूल खुला तो उसके बाद फिर, लेकिन हाँ, उसके बाद फिर जो साइकोलॉजिकली जो बच्चे प्रभावित हुए थे, जो इस दौर से जो गुजरे थे, उन सब को भी मजबूती देने में इसने भूमिका तो निभाई है हैप्पीनेस क्लास ने। और वहाँ उन चर्चाओं में शामिल होकर के बच्चों का कुछ मन का हल्का होना, कुछ गुत्थियों का सुलझना, ये सब कुछ हो पाया। बाकी तो रिसर्च बताएगा, नहीं तो खोखला दावा सा लगेगा। थैंक यू सर। बस आज के लिए आखिरी सवाल, बिकॉज वी आर वे ओवर टाइम। करण, गो अहेड। तो इन सभी बातचीत के बीच मेरी एक चिंता भी है कि विद्यार्थी को खुशी का अनुभव करवाना बहुत अच्छा प्रयास है, परंतु क्या खुशी पा लेने की चाह में शिक्षक बाकी इमोशंस की जगह कक्षा में कैसे बना पाते हैं, है ना? क्योंकि बहुत बार विद्यार्थी दुखी भी होंगे। सॉरी करण टू बट इन, आप थोड़ा माइक में बोलेंगे, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रहे हैं। या अब आ रहा है मैम? हाँ, तो मेरा एक चिंता है कि विद्यार्थियों को खुशी का अनुभव करवाना एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, बट क्या खुशी को पा लेने की चाह में शिक्षक बाकी इमोशंस की जगह कक्षा में कैसे बना पाते हैं, है ना? तो बहुत बार विद्यार्थी दुखी भी महसूस करेंगे, क्रोधित भी होंगे, तो क्या खुशी के अनुभव को साझा करते हुए विद्यार्थी बाकी इमोशन को कैसे साझा करते हैं? क्या वो इसको साझा करते भी हैं या नहीं करते? क्योंकि उदाहरण के तौर पर, क्योंकि जब मुझे ये दिखेगा कि मेरे वातावरण में सभी खुशी के अनुभव साझा कर रहे हैं, तो मुझे अपना दुख का अनुभव साझा करने में, जाहिर करने में बहुत मुश्किल महसूस होगी। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत किया जाए तो मुझे बहुत जी, तो मैं रख दूं बात। तो इसमें देखिए एक एक्टिविटी हमारी है, आओ डर साझा करें। तो एक्चुअली कई बार ये कुछ ना मिथ्स बन जा रहे हैं इसके अराउंड, या कुछ मिसकंसेप्शंस फैल जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, और इस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। इसका तो आपने एक जिम्मेदारी का एहसास कराया है। हैप्पीनेस करिकुलम एक्चुअली के कुछ हमारी जिंदगी को से जोड़ने की बात करता है। हम खुद से खुद को कनेक्ट कर पाए, खुद को अपने परिवार से कनेक्ट कर पाए, सोसाइटी से, नेचर से, उसकी बात करता है। तो कुछ एक्टिविटी उसमें आओ डर साझा करें, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, वहां बच्चे अपने डर बताते हैं, उन्हें किन बातों से डर लगता है। ऐसे ही यहाँ पर है माइंडफुलनेस में एक्टिविटी है कि जिसमें कि वो माइंडफुलनेस ऑफ थॉट्स, जहाँ वो अपने जिस तरह के भी जो भी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें वो ऑब्जर्वेंट रहते हैं, उसको ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, और उसे फिर शेयर भी करते हैं जहां उन्हें लगे कि मैं शेयर कर सकता हूँ। वहां भी दबाव नहीं है, यानी यदि कोई अपने फीलिंग को शेयर करना चाहता है तो करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज हैं जहां बच्चे को अवसर मिलता है अपनी गलतियों को शेयर करने का, कि मुझसे गलती कहाँ हुई, उन गलतियों को फिर करेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, और उन गलतियों को और बेहतर तरीके, सिचुएशन को बेहतर तरीके से कैसे डील कर सकता था। तो जितने भी इमोशंस हैं, उन सभी इमोशंस को वहां पर रखे जाने का स्पेस दिया गया है। हाँ, लीड कहाँ करना है वो हमने लक्ष्य के रूप में तय किया कि खुशहाली की तरफ लेके जाना है। तो एक बार निवेदन रहेगा
ये हैप्पीनेस की हैंडबुक देखें। डिजिटल रूप में वो उपलब्ध है हमारे एजुडेल की वेबसाइट पर, वहाँ लिंक है हैप्पीनेस के नाम पर। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नर्सरी से 8 तक की पूरी PDF मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड करके देखिए और आपके फिर बहुत सारे प्रश्नों का इंतजार रहेगा, और प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो फिर तो बड़ी बढ़िया बात है। Okay, so I think we can now wrap up. लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सवाल आए, आपने बिल्कुल सही कहा, इन सवालों को देखकर सुनकर ये भी लगता है कि हमको और बहुत कुछ जानने की जरूरत है, स्पेशली क्योंकि हम दिल्ली में हैं और हमारे दिल्ली के आसपास के स्कूलों में क्या हो रहा है हमको वो नहीं पता। सो आई थिंक हम दोबारा आपको बुलाएंगे, सो आप प्लीज थोड़ा सा और मे बी वन पर सेशन हम करेंगे, सो दैट स्टूडेंट्स और भी हम जान पाए। मे बी आप कुछ क्लासरूम के अपने और एग्जाम्पल्स ला सकते हैं, बट ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ इसमें आपने कुछ चीजें आप तीनों ने ही बोली जो हमारे लिए बहुत अहम है। एक तो हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह की है, जो कि गुंजन का भी सवाल था। सो टीचर्स एज लर्नर्स, हम ये बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, आप लोगों ने ये बताया कि आप ऐसा कर रहे हैं। टीचर्स एज लर्नर्स, हमारे एज टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स, रिफ्लेक्शन का आपने रोल की बात की। आपने सेंटरिंग जिसको बोलते हैं ना, स्टूडेंट्स को सेंटर में रखना, वो भी स्टूडेंट्स को सेंटर में रखना, टेक्स्ट बुक को नहीं। सो एक वो भी हमको आप तीनों ने ही जो बोला, स्टूडेंट्स के लर्निंग को, स्टूडेंट्स के इमोशंस को, स्टूडेंट्स की थिंकिंग को, स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करें, एंड वो भी है। एंड एक तरह से जो ब्रेकिंग साइलोस की हमने बात की, जो कि होम स्कूल की हम अक्सर बात करते हैं, और आई थिंक हम आगे भी कर सकते हैं कि ये कंटेंट एरियाज में जो साइलोस बने रहते हैं, हाँ, कि मैथ का टीचर साइंस से नहीं बात करेगा, सो ऑन सो फोर्थ। सो एंड एक कनेक्शन, और एक हम जो कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, with the school and the community, with the school and the families, and keeping everything together, जिससे कि लर्निंग जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा मीनिंगफुल होगी। एंड फॉर हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, एज बीइंग इन द यूनिवर्सिटी स्पेसेस, इस तरह के डायलॉग्स हमारे लिए भी जरूरी है। सो आई वांट टू थैंक ऑल थ्री ऑफ यू a lot. I have also learned a lot from your talk, and now I will just hand it back to Professor Rukmini. Thank you again. Thank you so much. Thank you very much, Sunita, for anchoring this and for kind of bringing all of this together. I would definitely want to thank all our three panelists who, and there was such an important conversation that happened between the three: entrepreneurial mindset, happiness curriculum, and joyful learning. What I understood today is the way in which all three are so interconnected to each other. So it is not, one thing is not happening separately from another thing. There are certain core principles which are operative everywhere. That, to me, that is a very important, pedagogic practice that, school teachers are actually imparting to the students. Students को ना लगे कि ये क्लासरूम में कुछ हो रहा है और दूसरे क्लासरूम में कुछ अलग ही principle से जा रहा है. There is a running core principles. I think that is extremely important. So I thank all of you for taking time off. I know it was a busy day today, and yet you took time to come and join in our platform. I would also like to take this opportunity. I know that there are many other government school teachers who have joined us in this session. I want to thank all of you. और मुझे लगता है कि आज जो बातें हुई, और सुनीता ने भी कहा कि हम एक पूरा दिन का कुछ प्लान करेंगे after maybe in a month's time or later, where we have
have a larger gathering of Delhi government school teachers interacting with university teachers and university students. So बहुत बहुत शुक्रिया कि और सारे school teachers भी आए और इस platform से जुड़े. ये हमारा एक छोटा सा, I think this is our first step from the outreach division. Government schools के teachers के साथ एक लगातार interaction जारी रखने का. Of course, it all started with Naresh ji, and I only have to thank him that whenever I get in touch with him, he's so prompt and so supportive. I have no words other than gratitude to express towards Naresh ji. Thank you very much. Ab Thank isi you, tarah madam. hamare saath support or cooperation. Always, ma'am, always. I also would definitely want to thank all other our university, Ambedkar University Delhi's teachers who have joined, students particularly for being here, learning and relearning, and also asking questions. Thank you very much, all the students who are here. There are a couple of other people, Dr. Kritika Mathur, who is Deputy Dean of Ambedkar University Delhi. She has been rock solid at the back. She suddenly fell ill in the middle, and that's the reason why she couldn't join the meeting. But without her support, this program would not have happened. The Outreach and Extension Division office persons, the PR office people, and of course, none of these programs will happen without the support and encouragement that we receive from the Vice Chancellor. So I want to put on record that, thanking the Vice Chancellor, the Registrar and his office for supporting all our programs. Thank you everyone. Shikshak Divas ke hardik shubhkamnaएं के साथ I think we should close and we hope to meet you again. Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. आप लोगों ने मंच दिया और नरेश जी को भी Professor Rukmini sir. Thank you. Manu ma'am, thanks. Avinash sir, thanks. बहुत अच्छा लगा और क्वालिटी क्वेश्चंस आए जिन पे बात करने की बड़ी जरूरत भी थी. शुक्रिया. I have shared a Google online form in the chat box. Please fill that up for the e-certificates. Students, teachers, जिनको भी चाहिए वो please fill up कर ले. Certificates आपको वहाँ से ही मिल जाएंगे. Thank you very much. Bye. Thank you. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day, everyone. Happy Teachers Day. उसका लिंक मेरे को भी दे दीजिएगा मैडम एक बार ना, मैं भी दे दूंगा अपने जो ज्वाइन. लिंक मैंने डाल दिया है इस पे अभी जो है ना गूगल डॉक वाला. नहीं ठीक है नरेश जी, मैं आपको व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगी. प्लीज थैंक यू. I'll do that. Okay. लेटेस्ट लिंक जो है यही वाला है. I'll share it with you over WhatsApp as well. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Bye.